शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से बात कर लेते हैं, जो कि ब्रिटेन के दौरे पर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है। सीधे लिए चलते हैं, आपको इस वक्त कीर स्टारमर संबोधन दे रहे हैं। Sorry, do you want me to repeat? Yes, okay. I think we understand each other well. I mean, look, and we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. और आज ये जो बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डील तैयार की है और कामयाब की है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब। और ये दोनों टीम जहाँ काम करके ये जो काम पूरा किया है, इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। And, you know, as I've said before, and as we were just discussing in our tete-a-tete, we've entered a new global era, and that is one that requires us to step up, not to stand aside, to deliver for the British people by building deeper partnerships and alliances. And today is very much confirmation of that approach. और अभी वहाँ पे बात सब कर रहे थे आपके साथ बैठ के, हमने बातें की कि नई ग्लोबल इरा पैदा करनी है और इसके लिए हमको सब कुछ करना है जो हम सक्षम है, जिसके बाद ब्रिटिश लोगों को यहाँ पे बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप मिलेगी आपके देश से, और यहाँ पे जो हम करने वाले हैं उससे दोनों देशों को फायदा होगा। And the UK has been negotiating a deal like this for many years, but it is this government that got it done. And with it, we're sending a very powerful message that Britain is open for business. And that is already generating huge confidence. Today we're announcing nearly £6 billion in investment and export wins between India and the United Kingdom, creating over 2,200 jobs for British workers. और ये जो ऐसी नेगोशिएशन मैं पहले बहुत की है, पर ये जो अभी हमने किया है ये बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को और संसार को ये जानेंगे कि ब्रिटेन इज़ ओपन फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए खुला है। और ये ब्रिटिश लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये 6 बिलियन पाउंड्स के 6 बिलियन पाउंड्स यहाँ पे नहीं पैदा होगा। और यूके और इंडिया ने जो ये साथ काम करने का निर्णय किया है, इससे 2,200 जॉब्स भी पैदा होंगे यहाँ पे। But of course, as we've discussed this morning, this is not the extent or the limit of our collaboration with India. We have unique bonds of history, of family, and of culture. And we want to strengthen our relationship further so that it is even more ambitious, modern, and focused on the long term, the step up in the relationship that we discussed in the autumn of last year. And that's why, alongside this trade deal, I am delighted that we're building on our partnership by launching our India-UK Vision 2035 strategy, pledging to work more closely on areas such as defence, migration, climate, education and health. और इस सुबह जब हमने बात की थी कि एक आपस के साथ कोलैबोरेट करेंगे, इससे ये साबित होता है कि हम लोग अपनी इतिहास, फैमिली और संस्कृति को बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, और जो मजबूत रहा है। और इसीलिए भविष्य में हम ये दोस्ती, ये रिश्ता स्टेप अप करना चाहते हैं।
वो ट्रेड डील बना के और इंडिया और यूके 2035 विजन के आधार में वो जो डिफेंस है, माइग्रेशन है, एजुकेशन है, उस पर ध्यान दे के। We will also build on the fantastic work we already do in technology and innovation, celebrating the one-year anniversary of the landmark Technology Security Initiative and making the most of the opportunities it represents for both of our countries. और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी अभी पहली एनिवर्सरी मनाया है जो हमने, वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन सिक्योरिटी के आधार पे है और ये आगे बढ़ेगा, इसका पूरा विश्वास है। Together as we strengthen security, growth and prosperity for working people in both of our nations. So let me now hand over to you to say a few words, and thank you again for your leadership on this. Thank you. Thank you. Sorry. प्रधानमंत्री स्टारमर, फ्रेंड्स, नमस्कार। Prime Minister Starmer, friends, namaskar, good morning. सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। First of all, let me extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Starmer for the warm welcome and gracious hospitality. Today marks a historic day in our bilateral relations. I am pleased to note that after many years of hard work, the comprehensive economic and trade agreement between our two countries has been concluded today. यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। This agreement does not merely pave way for economic partnership, but is also a blueprint for our shared prosperity. On the one hand, Indian textiles, footwear, gems and jewelry, seafood, engineering goods will get better market access in the UK. Indian agricultural products, processed food industry will find new opportunities in UK's market. This agreement will prove especially beneficial for India's youth, farmers, fishermen and MSME sector. On the other hand, people and industries in India will be able to access products made in the UK, such as medical devices and aerospace parts at affordable and attractive prices. इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा
और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। Along with this agreement, we also have reached a consensus on the Double Contribution Convention. This will inject new energy into the service sectors of both countries, especially in technology and finance. It will promote ease of doing business, reduce from India's skilled talent. These agreements will enhance investments and generate new employment opportunities in both countries. Moreover, as agreements reached between two democracies and two of the world's major economies, they will lend support to global stability and global prosperity. फ्रेंड्स, अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। Friends, to give new momentum and energy to our comprehensive strategic partnership in the coming decade, today we are launching our Vision 2035. Vision 2035 is a roadmap that will form the basis of a strong, trustworthy, and ambitious partnership in the fields of technology, defense, climate, education, and people-to-people connect. डिफेंस और सिक्योरिटी में साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इट इज अवर कमिटमेंट दैट फ्रॉम एआई टू क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स to cyber security, we shall create the future together. A defense industrial roadmap has also been drawn up for partnership in defense and security. Work will continue on strengthening our technology security initiative. It is our commitment that from AI to critical minerals, from semiconductors to cybersecurity, we shall create the future together. फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। Friends, in the field of education too, we are writing a new chapter together. 6 universities of the UK are opening their campuses in India. Just last week, the University of Southampton inaugurated its campus in the city of Gurugram in India. फ्रेंड्स, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। Friends, we thank the Prime Minister and his government
for strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam. We are united in the belief that there is no place for double standards in the fight against terrorism. We also agree that the forces which espouse extremist ideologies should not be allowed to misuse democratic freedoms. Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held to account. Our security agencies will continue to enhance cooperation and coordination on matters such as the extradition of economic offenders. फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। Friends, we have continued to exchange views on peace and stability in the Indo-Pacific, the ongoing conflict in Ukraine, and the situation in West Asia. We support early restoration of peace and stability. Respect for sovereignty and territorial integrity of all countries is essential. Today's era demands development, not expansionism. फ्रेंड्स, पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे। उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। They did not just bring curry from India, but also creativity, commitment and character. इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है। Friends, last month in the unfortunate plane crash in Ahmedabad, our sisters and brothers of the UK were among those who lost their lives. I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. The people of Indian origin in the UK form a living bridge that connects our two nations. They did not just bring curry from India, but also creativity, commitment, and character. Their immense contributions are not just limited to UK's prosperous economy, but are also visible in UK's culture, sports, and public service. फ्रेंड्स, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring सॉलिड पार्टनरशिप। आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। Friends, I would be remiss not to mention cricket when India and the UK are coming together, especially during a test series. For both of us, cricket is not just a game, but a passion. And also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building a high-scoring, solid partnership. The agreements concluded today and Vision 2035 are milestones which advance this very spirit. प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए
आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं और आशा करता हूं कि हमें शीघ्र ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister, I thank you once again for your warm hospitality. I would also like to take this opportunity to extend an equally warm invitation to you to visit India. I am eagerly looking forward to hosting you in India very, very soon. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर के बीच नज़दीकी और बातचीत तस्वीरों में झलक रही है और इस दौरान भारत और ब्रिटेन ने एक ऐसा समझौता किया है जो ट्रेड डील के तौर पर कहा जा रहा है और इस डील के जरिए भारत और ब्रिटेन दोनों को ही एक दूसरे के मार्केट की एक्सेस होगी। भारत को किसानों के लिए, किसानों के उत्पाद के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए ब्रिटेन का बड़ा मार्केट मिलेगा। ब्रिटेन को अपने चिकित्सकीय उपकरणों और डिफेंस उपकरणों के लिए भारत का मार्केट मिलेगा। इसके साथ ब्रिटेन और भारत एक दूसरे के नजदीक आएंगे। इस चर्चा में भारत ने कीर स्टारमर का पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत को पूरा समर्थन देने का धन्यवाद कहा और यह भी कहा कि जो लोग इस तरीके के हमले के पीछे होते हैं अब उन्हें किसी भी तरीके का फायदा उठाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए दोनों देश तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टामर, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर को भारत आने का न्योता दिया। साथ ही उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री का ब्रिटेन में जो वेलकम किया है। प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि वैसा मौका कीर स्टामर भारत आकर भारत की सरकार और भारत के लोगों को भी दे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील, पहलगाम हमले की निंदा के लिए आभार जताया। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ हैं। दोनों देश इसके जरिए एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं और वो गर्मजोशी दोनों के मिलने और बातचीत करने के तरीके में भी दिखाई देती है। एक दूसरे के बेहतर नज़दीक, आई टू आई कॉन्टैक्ट, बातचीत में एक दूसरे को समझाना और एक दूसरे के शब्दों में अपनी हामी व्यक्त करना, ये बताता है कि दोनों देश एक साथ चल रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों देश एक जैसे ही हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आवास है, वहां मुलाकात। आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर के बीच इस बैठक और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकलकर सामने आता दिखता है? जी राजीव, अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रेस वार्ता हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर में, कि जो एक सबसे अहम जो हिस्सा है जो कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो फाइनलाइज हो गया है भारत और यूके में, ये बहुत बड़ी एक विन है भारत के लिए और यूके के लिए भी। और क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो दौर है काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रहा है। ट्रम्प हम देख रहे हैं आए दिन कंट्रीज पे टैरिफ्स लगा रहे हैं और अभी हाल ही में यूएस के एक सेनेटर ने भी ये बोला कि अगर भारत, चीन और ब्राजील जो है रशिया से तेल और गैस खरीदेंगे तो उन पे 100% टैरिफ लग सकते हैं। तो ऐसे समय में बहुत बेहद अहम जरूरी है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे यूके है उसके साथ जो है इस तरह की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की डील साइन हो और आने वाले समय। और आतंकवाद की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इस समय ब्रिटिश जो है भारत के साथ पूरा तरीके से खड़ा हुआ है और जितना भी पाकिस्तान से जो आतंकवाद को बढ़ावा मिलता रहा है पाकिस्तान में, उसको अपोज करता है ब्रिटेन भी और भारत भी, और एक ही लाइन पर है। अगर उस संबंध में देखें तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि और डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस जो है भारत और यूके में और इसमें बढ़ोतरी होगी। और आने वाले टाइम, अभी हाल ही में यूके ने ये भी अनाउंस करा कि वो कुछ अपनी यूनिवर्सिटीज भी भारत में खोलना चाहता है। और कुछ समय प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख भी किया कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में अपना एक सेंटर भी पिछले हफ्ते खोल दिया है और ये दोनों देशों के नजदीक आने की एक शुरुआत मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टारमर के बीच नजदीकी तस्वीरों में भी दिख रही है। आदित्य, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।